when a ball is thrown up, it has a velocity here, therefore it has kinetic energy. But when it goes up, then its height increases and it gets the potential energy in the form of mgh. But when it reaches top, its velocity becomes 0. Then how much is its kinetic energy? 0. Okay, that means what happened to its kinetic energy? That is lost. But it has gained potential energy. Again, when it comes back, then when it comes here, the height is 0. That means potential energy is 0. But it has a lot of speed just before striking the ground. Just before, it has a lot of speed, velocity. So it has kinetic energy. Once again, it has kinetic energy, but the potential energy is 0. That means that ball is having sometime kinetic energy and sometime potential energy. Then what is the relation between the two? One thing we know, that whenever the ball is thrown from here, after it has left our contact, we have not done anything to it. हमने कुछ नहीं किया, ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। वहां से जब वो नीचे आती है तो हमने कुछ नहीं किया, अगेन उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। ये जो उसकी दोनों चीजें हो रही हैं, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, increase in potential energy, then decrease in potential energy, increase in kinetic energy. What is this? A process. इस process में there is no exchange of energy with a different form. क्या इसमें heat बन रही है? We say no. हीट नहीं बन रही है, इस एनर्जी में से किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही है, इसमें से किसी तरह की केमिकल एनर्जी नहीं बन रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब सारी की सारी एनर्जी उसके अंदर है। तो वो जो एनर्जी उसके अंदर है किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा ये कहना है कि उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर थी, वो मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही रहती है, कभी वो पोटेंशियल बन जाती है और कभी काइनेटिक बन जाती है। यही चीज हम एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, दैट मींस द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। इसको हम लोग दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, ग्रेविटेशन के केस में भी कर सकते हैं, स्प्रिंग के केस में भी कर सकते हैं। सो लेट अस डू इट इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, हियर इज a ball which is dropped to the ground. This is its position 1. This is anywhere position 2, and just before the strike it is position 3. We have to calculate mechanical energy at position 1, the mechanical energy at 2, mechanical energy at 3. What is changing? The answer is height is changing. यहां से लेके यहां तक ये टोटल हाइट है h। यहां से यहां तक, let us suppose this fall is x, then how much is this height? h minus x. ये डाटा हमने मान लिया। Now we will calculate mechanical energy at position 1. Mechanical energy at position 1. मैकेनिकल एनर्जी के लिए कौन से दो पार्ट हमको पता होने चाहिए? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ओके, काइनेटिक और पोटेंशियल के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? हाइट एंड वेलोसिटी। सो बताइए, एट पोजीशन 1 व्हाट इज वैल्यू ऑफ हाइट? हाइट h. What is value of velocity?
0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? फोर्स इज हाउ मच? mg एंड हाइट इज h. तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं. हाइट h पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mg h. और वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0. Kinetic energy 0. Now, how much will be mechanical energy? The sum of two mgh plus 0 is equal to mgh. ये हो गया mechanical energy. In case 1, okay. At position 2. At position 2, when it falls through the distance x, then what is its height? Height from the ground is h minus x. What is its velocity? Velocity के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं v square is equal to u square plus 2as. Velocity v square is equal to u square. It is falling down. What is u here? 0. How much is acceleration? G. So v square is equal to 0 square plus 2g, and how much it has fallen? X. 2gx from this point to this point. So v square is equal to 2gx. Now, if this is the height, then what is potential energy? Potential energy is equal to mg into h minus x, and how much will be kinetic energy? Half mv square, half into m into v square. V square is 2gx. So this comes to mgx. Then how much will be total kinetic and total mechanical energy? Total mechanical energy is potential energy plus kinetic energy. mg h minus x plus mg x. दोनों को ऐड करिए, mg कॉमन निकलेगा, h minus x plus x. So what do we get here? Yes, h minus x plus mgx. This is equal to mg, and h minus x plus x is equal to h. So this is total mechanical energy mgh. Mechanical energy in position 2. Okay. Now we will find total mechanical energy in position 3. At position 3, height 0, velocity v square is equal to u square plus 2a into s. और यहां से लेके यहां तक गया तो इसने कितना s ट्रेवल कर लिया? इक्वल टू हाइट इटसेल्फ. तो यहां से लेके यहां तक के लिए s की वैल्यू क्या लेनी है? h. So velocity square is equal to 0 plus 2gh. Okay. Now how much will be potential energy? mg into height h, 0. How much will be kinetic energy? Kinetic energy half mv square, half m into v square. V square is 2gh. This 2 is cancelled, and what do we get? mgh. This is kinetic energy. Sorry, not kinetic energy. Potential energy 0, kinetic energy. Then how much is the total mechanical energy? Total mechanical energy
is equal to PE plus KE. PE is 0, K is mgh, so total is again mgh. This is mechanical energy in case 3. Okay, so mechanical energy in case position 1, how much it was? mgh. Mechanical energy at position 2 when it is anywhere at distance x is how much? mgh, and at bottom it is again mgh. So mechanical energy remain constant. That is our result. Mechanical energy remain constant or remain conserved. Remain conserved throughout the motion. ठीक है? अब हम ये कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी तो पूरी कंजर्व होती है, लेकिन व्हाट हैपनिंग टू पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी? दे कीप ऑन चेंजिंग। उससे हमको एक क्लू मिलता है दैट एनर्जी इज कंजर्व। यहां नीचे उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ऊपर गई तो उसके पास क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। कहां से आई होगी? जरूर इसी काइनेटिक एनर्जी से बनी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाके क्या हो गई? 0, और उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो ये एक प्रिंसिपल हम याद रखेंगे। इन सच प्रोसेसेस व्हाट हैपेंस? Kinetic energy can be converted into potential energy and potential energy can be converted into kinetic energy in the case of any process. और बाहर से कोई एनर्जी का लेना देना नहीं हो रहा, तो यही दोनों आपस में बदलेंगी। अगर हम ये कहेंगे कि एक बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है, इट हैज वेलोसिटी एंड इट वेंट एंड हिट द बॉल। अगर उसने बॉल को जाके हिट किया और वहां जाके रुक गई, जैसे इसको हमने थ्रो किया। अगर इसको थ्रो करेंगे तो ये जाके बॉल से टकराएगा और वहीं गिर जाएगा, वापस नहीं आएगा। नाउ व्हेन इट हैज गॉन देयर, इट हैज ए एनर्जी। क्या नाम है उस एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी। जब ये दीवार से टकराया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। पोटेंशियल एनर्जी यहां भी नहीं थी, वहां भी नहीं थी, क्योंकि दोनों जगह इसकी हाइट एक समान है, 0 है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो यहां पर इसके पास हाफ mv² थी, दीवार से टकराया, वेलोसिटी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0, मैकेनिकल एनर्जी 0, तो वो एनर्जी गई कहां? एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो उसमें हम लोग इस प्रिंसिपल को नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया। कैसे फॉर्म चेंज कर लिया? ये जब वहां जाकर ऐसे टकराती है तो दो चीजें होती हैं, ये आप ध्यान रखिए। जब भी कोई चीज वॉल से, ग्राउंड से, किसी भी चीज से जाकर कोलाइड करेगी तो दो एक्शन होते हैं। एक वो एक्शन होता है जैसे कि हम पानी में पैर मारते, पानी उछलता है, हमारे पैर की एनर्जी कहां गई? वेलोसिटी लेके हमने ऐसा पैर चलाया और उसको पानी में हिट किया और पैर रुक गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कहां ट्रांसफॉर्म हुई? बिकॉज एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कहां ट्रांसफॉर्म हुई? तो हमारे पास आंसर है कि पानी के जितने पार्टिकल उछले हैं उनके पास वेलोसिटी आई है, उस वेलोसिटी से उनके पास कौन सी एनर्जी है? हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पैर की जो एनर्जी है वो वाटर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। 100% नो, क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन हुआ है, पैर में और पानी में, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हुई। आवाज आई है तो थोड़ी सी एनर्जी साउंड में भी कन्वर्ट हुई। इस तरह से जब हम पानी में पैर पटकते हैं, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, इसमें
किसमें कन्वर्ट होता है? पानी के मॉलिक्यूल सबको दिखते हैं, लेकिन अगर आपने हवा में पैर मारा, जमीन ग्राउंड पे हवा में ही ऐसा पैर उठाया और ऐसा मारा, तो कौन कौन सी एनर्जी बनेगी? आंसर इज नो डिफरेंस इज देयर. अगेन देयर विल बी सम साउंड एनर्जी, देयर विल बी सम heat energy, and in place of water, now what is jumping out? Air. हमको हवा आंख से दिखती नहीं है, पर जंप तो होती है. जैसे पानी उछलता है वैसे हवा भी उछलता है, हम सबको मालूम है. ऐसे हम अगर इसको हाथ को ऐसा दबाएंगे तो इसमें से हवा पास आउट होती है. So that is the kinetic energy contained by the air molecules. इस तरह से हमारी एनर्जी जाती है. ये जो सब सोर्सेज हैं ये एक्सटर्नल सोर्सेज, और हमने अपनी डेफिनेशन में क्या लिखा है? इन द प्रोसेस व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज. अगर इस तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होता है तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में, क्योंकि दोनों का सम कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट. अंतर समझ में आ रहा है कुछ? तो अगर हमने एक लकड़ी का टुकड़ा दीवार की तरफ फेंका, इट हैज काइनेटिक एनर्जी, इट विल गो देयर, स्ट्राइक देयर एंड फॉल डाउन. देन यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी इन इट, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी. तो वहां पर ये एग्जांपल नहीं लगेगा क्योंकि एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई है. लेकिन अगर हमने एक स्प्रिंग सामने लगाकर रखा हुआ है, ऐसा स्प्रिंग सामने है, और यहां से हमने एक लकड़ी का टुकड़ा फेंका, ये लकड़ी का टुकड़ा जाता है और इस स्प्रिंग को ऐसे हिट कर, ये स्प्रिंग ऐसा कंप्रेस हो गया और ये रुक गया. इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई. वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी गॉन, पर ये ऐसा कंप्रेस हो गया. और एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एम स्क्वायर. So it is an example where kinetic energy of this system, kinetic energy of this wooden block convert into potential energy of the spring. This is conversion. यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल होगी. क्यों? क्योंकि वुडन बॉक्स और स्प्रिंग इसको छोड़ के किसी तीसरी चीज के पास एनर्जी नहीं. इसको मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा. इट हैज काइनेटिक एनर्जी, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. जैसे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 100, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 0, क्योंकि ये अभी कंप्रेस नहीं है. नाउ इट हैज कम हियर एंड स्ट्राइक्स इट, इसकी वेलोसिटी हो गई 0. तो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, इट विल कम टू 100. अब यहां पर बताइए, ये सिस्टम दोनों मेंबर के पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 100. 100 प्लस 0 दैट इज 100. जब इसने स्ट्राइक किया, फिर दोनों मेंबर के पास टोटल एनर्जी लीजिए, 0 प्लस 100 इज इक्वल टू 100. तो ये होती है एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो आप ये मत सोचिए कि इसी के पास काइनेटिक एनर्जी थी और इसी के पास पोटेंशियल आएगी, दे नॉट बी नेसेसरी. बॉल के केस में यही हुआ है. बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, बॉल के पास दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक, और बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है. बट व्हेन ए थिंग स्ट्राइक्स ए स्प्रिंग, तो हम कैसे एक्सप्लेन करते? इसकी काइनेटिक एनर्जी 100 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो कंजर्वेशन कहां हुआ? नहीं हो पाया. तो हम फिर क्या करते हैं? अपनी एक्सप्लेनेशन बदलते हैं. अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि दिस डस्टर एंड दिस स्प्रिंग, दिस मेक्स वन सिस्टम. इस एक सिस्टम के पास अभी टोटल एनर्जी कितनी है? 100, जो कि इसके पास किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी. व्हेन इट स्ट्राइक्स, अच्छा 100 इसके पास है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0. व्हेन इट स्ट्राइक्स, इसके पास Ke कितना हो गया? 0, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 100. फिर से टोटल करो 100. तो अब हमको टोटल करना पड़ रहा है क्योंकि 2 मेंबर, ऐसे हो सकता है 3 मेंबर, 4 मेंबर. तो उन सब का सम हम लेंगे, दैट विल बी नोन एज एनर्जी ऑफ द सिस्टम.
तो एनर्जी जो कंजर्व होती है सिर्फ एक पार्टिकल में हो, नॉट नेसेसरी, इट मे बी ए सिस्टम। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स भी हमको मिलेंगे वेयर एनर्जी इन द सिस्टम इज कंजर्व। और जब भी हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व होती है तो हमको बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वी मस्ट नो कि एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसका काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हमको कैसे पता लगा? क्योंकि हमने स्टोरी को रीड आउट किया। स्टोरी लिखी हुई है दैट ए कार गोज एंड कंप्रेस ए स्प्रिंग, देन देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और उससे हमको पता लगता है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए।